Good morning to all you dear students. Today I Ravindra Pawar introducing to myself as a social science teacher for your class. Okay, so in class 9 we are going to read firstly chapter number 1 from geography, and that is India size and location. Okay, here in this chapter we will learn कि इंडिया की लोकेशन जो है वर्ल्ड में कहाँ पर है. That means about the geographical location of the India, or we can say of our country. So here about the location of India, as you all know that our earth is divided into four hemispheres. Okay, they are northern hemisphere, southern hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere and eastern hemisphere. Okay, so basically if you want to locate any place or a country on the world or on the globe, so we need to know the knowledge, or we have to knowledge about these hemisphere. Okay, so I draw for your help here a diagram. In this image or diagram you can see here are northern hemisphere and southern hemisphere. I draw for your help. Okay, so India is completely located, or we can say entirely located in the northern hemisphere of the world. Okay, पूरा भारत जो है वो पूर्ण तरीके से कंप्लीटली जो है एंटायरली यानी पूरे तरीके से कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो इट इज 0 डिग्री latitude. Okay, it is known as equatorial origin. And here one more latitude I drawn, that is Tropic of Cancer. The latitudinal extension of Tropic of Cancer is 23.5 degree. तो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होती है. You all know about it. Okay, so this latitude, this 23.5 degree northern latitude, or we can say Tropic of Cancer, passes through the middle of our country. That means from India. ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है या पास होती है. जस्ट लाइक इक्वेटर, जैसे इक्वेटर में वर्ल्ड को या हमारी अर्थ को जो टू इक्वल पार्ट में या टू इक्वल हाफ्स में दो आधे बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, ऐसे ही ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे कंट्री इंडिया को जो है बिल्कुल टू इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है. दैट मींस इन नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया, वी कैन से फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ओके, एंड सो here about the location of India, we can say that India is located in the northern hemisphere of the world. Okay, in a complete manner, and Tropic of Cancer passes through the middle of it. Okay, now and as we know our earth is divided into 7 land masses on a large level. They are Asia, Africa, Australia, Antarctica, North America, South America and Europe. Okay, so India is located in the Asia continent. And in Asia sir, in which direction it is located? एशिया के कौन से डायरेक्शन में जो है इंडिया हमारा जो है लोकेटेड? तो एशिया के जो है साउथर्न पार्ट में या साउथ डायरेक्शन में जो है या टुवर्ड्स द साउथ ऑफ एशिया हमारा इंडिया लोकेटेड. ओके, क्लियर? सो इफ वी सी on the world map or on the globe, so we find that India is located in the northern hemisphere, and regarding to the continent, that is our continent, that is Asia, we located in the south of Asia. Okay, is it clear to everybody? Now about the size of India. India has 3.28 million square kilometer area, and it scores 7th rank in the term of area. एरिया के टर्म वाइज अगर हम इंडिया को देखें तो ये 7th रैंक पर वर्ल्ड आता है. देन विच कंट्री स्कोर्स और होल्ड्स द फर्स्ट रैंक इन द टर्म ऑफ एरिया? दैट इज रशिया, देन कनाडा एंड सो ऑन. ओके, सो इंडिया होल्ड्स और स्कोर्स 7th रैंक इन टर्म ऑफ एरिया, एंड इट हैज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया. ओके, एंड of the total area of the world और total land area of the world, उसका कितना परसेंटेज सर? अगर हम इसको एज परसेंटेज में अगर हम देखें तो ये 2.4% of the total land masses of the world which are visible to us. Okay, are you understanding what I am saying? वो
the extension of India according to the latitudes and longitudes. That means regarding to the latitudinal extension and longitudinal extension we are going to read. So the latitudinal extension of India is 8 degree 4 north to 37 degree 6 north. Okay, and longitudinal extension is 68 degree 7 east to 97 degree 25 east. Okay, ये क्या होता है सर? ये latitudinal extension and longitudinal extension क्या होता है? ये latitudes and longitudes are imaginary lines you all know which are actually not present in the world. Okay, but we can see. कैसे हम इमेजिन करते हैं? ओके, अगर आप देखने जाए सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट महिपुर के पास में डोंगला विलेज है, वहाँ पर जो है वहाँ से पास होता है, तो आप वहाँ जाए तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोई ड्रॉ किया हो नहीं दिखेगा, भाई इमेज में लाइन है, हम अपनी सहूलियत के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए पूरे वर्ल्ड में आप घूमेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सारे साथ आप चलेंगे तो वर्ल्ड का राउंड है, ऐसा पॉसिबल है. दीज आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर ड्रॉन बाय जियोग्राफर्स for their convenience. Okay, क्योंकि आज तक टुडे यू आर यूजिंग गूगल मैप, बट एट द टाइम गूगल मैप नहीं था, तो जियोग्राफर्स होते हैं, कार्टोग्राफर्स होते हैं जो मैप को ड्रॉ करते हैं, वो लोग उनको ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, उसकी डिस्टेंस काउंट करने के लिए. ओके, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का इंपॉर्टेंस उस समय बहुत ज्यादा था. आज तो हम थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली हो गए तो इतना हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट फिर भी हमारे नॉलेज के लिए. और आप देखिए ये पब्लिक डोमेन में हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन अगर एक बिटवीन टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज बात हो तो ये सारी चीजें बहुत मायने. दीज आर हैविंग अ लॉट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंस इनका हो जाता है. ये तीन चीजों से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जियोग्राफिकल एरिया एक्चुअली में कहां से कहां तक होगा. रिसेंटली आप देख रहे हैं इंडिया चाइना में क्या डिस्प्यूट चल रहा है ना. तो नॉर्थन लैटिट्यूड मींस हो गया, नॉर्थ मींस हियर नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ईस्ट मींस हो गया ईस्टर्न. तो इससे ये तो समझ में आ गया, हियर यू आर गेटिंग कि सर ये नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमको जो है इंडिया का लोकेशन ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ दिस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. तो लैटिट्यूड तो आपको पता है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है. इधर फिर हम जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो यहाँ पर भी 90 लैटिट्यूड होते हैं. ओके, ऐसे, और इधर इसमें भी 90 तक होता है. ओके, इज इट क्लियर? और इसमें जो है ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो 181 है. इज इट क्लियर? सो रिगार्डिंग टू द टर्म ऑफ एरिया इन किलोमीटर्स ऑफ इंडिया इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट हैज और इट कवर्स 2933 किलोमीटर्स. दैट मींस फ्रॉम गुजरात टू westernmost point of Gujarat to easternmost point of Arunachal Pradesh. Okay, and if we talk about the north to south extension of India, it has or it covers 3214 kilometer distance. Okay, from the northernmost point of place of the Jammu and Kashmir to the southernmost point of India. Okay, that means the Indra point. Okay, so it is the area of India in terms of kilometer. And now we are moving towards our next content, that is India and the world. भारत और दुनिया. इस कंटेंट को ये जो हम शॉर्ट में समझेंगे. As we see regarding to the world, तो इंडिया हम देखते हैं कि जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में सर, और यहाँ से अगर हम वेस्ट में जाते हैं यूरोप, यहाँ पर जाते हैं सपोज मान लीजिए, तो पहले हम जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके जो पूरा पार करके हमें जाना पड़ता था, जो कि बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट, उसमें काफी टाइम लगता है. लेकिन बाद में जो है सुएज कैनाल जो कि डिस्प्यूट रहा है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसको जो है उसके लिए लड़ाई युद्ध वगैरह वो फिर बाद में ओपन कर दी गई. और उसके बाद जो है इंडिया से यूरोप जाने के लिए डिस्टेंस बहुत कम हो गया. क्लियर? ओके, और इंडिया के आप देखिए वेस्ट और साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्टर्न डायरेक्शन में आप देखिए इंडियन आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप. इधर ईस्टर्न आइलैंड अगर आप देखें तो ये कौन से हैं? अंडमान एंड ईस्ट डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ये कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, ये ईस्टर्न कोस्ट से अगर हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये भी इंडियन लैंड का ही हिस्सा है, बट ये इंडियन मेनलैंड में कंसीडर
Now here in your book on page number 5 you are having a flattened map of India, that means Indian political map. In this Indian political map you can see the adjacent countries of India like Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and Maldives. These countries are the neighboring countries of the India. ये भारत के पड़ोसी देश है. ओके एंड अगर इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन हम देखते हैं, ओके तो कितना है, क्या है, व्हाट इज द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? 28 states and 9 union territories are there now in India. Now from your book I am reading, India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territories. Now India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China and Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. और साउथर्न नेबर्स कौन से हैं हमारे? श्रीलंका. ओके और कौन से हैं? और साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज. तो एक तो मैंने आपको बोला श्रीलंका एंड अनदर वन इज वाज दैट मालदीव. मालदीव इज आल्सो द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया. ओके नाउ Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island. Lakshadweep Island के साउथ में यानी दक्षिण में कौन सा आइलैंड कंट्री है जो कि एशिया का सबसे छोटा कंट्री भी है? वो है मालदीव. India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. देखिए यहाँ पर क्या बोला कि इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन जो है एंड हिस्टोरिकल लिंक जो है इसके पड़ोसी देशों से बहुत मजबूत है. तो आप अगर मैप देखेंगे और आप अपने एटलस पे या मैप पर ये देखकर पता लगाइए कि ये इंडिया जो है एशिया से किस तरह अपने आप को अलग शो करता है. दैट्स व्हाई इंडिया को जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन. ओके एक कॉन्टिनेंट में जो फीचर होते हैं ना लाइक प्लेन्स, प्लेट्यूड, रिवर्स, ओशियन, सीज और ये सारे जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं टोपोग्राफी की होती है वो एक सब इंडिया को इसीलिए जो है सब कॉन्टिनेंट का स्टेटस दिया गया बिकॉज ये भी ऐसे एक कॉन्टिनेंट की तरफ अपने आप में जो है जियोग्राफिकल फीचर लिए हुए हैं. तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है और इसका हमें फायदा भी होता है. लाइक अभी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चला तो हमें उसमें जो है जियोग्राफिकल जो है हमारा जो लोकेशन है या एक्सटेंशन है उसका हमें जो है बेनिफिट भी मिल रहा है. अगर वार भी होता है तो इन सिचुएशन भी वो हमें जो है आप बोल सकते हैं बेनिफिट जो है प्रोवाइड करता है. हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन हमें बहुत फायदेमंद जो है या फायदा पहुंचता है. आप चाहे नॉर्थर्न एक्सटेंशन की बात कर ले चाहे साउथर्न एक्सटेंशन की बात कर ले, यहाँ पर हम जो है इंडिया जो है क्या है उसके पास साउथर्न डायरेक्शन में या ईस्टर्न डायरेक्शन में और वेस्टर्न डायरेक्शन में इंडिया जो है कोस्ट लाइन लिए हुए हैं यानी हम जो है वाटर बेस के थ्रू भी कनेक्टेड हैं वर्ल्ड में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. ये हमारे नेवी इंडियन नेवी के लिए बहुत सपोर्टिव जो है आप बोल सकते हैं रीजन हो सकता है ड्यूरिंग द वार एंड ट्रांसपोर्टेशन और नेविगेशन के लिए तो है ही. ओके सो इस चैप्टर में हमने इंडिया की साइज, लोकेशन, वर्ल्ड में वो कहां पर है और उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन-कौन से हैं इन द टर्म इंडियाज एरिया. ओके इन टर्म what percentage of total land area India covers. Okay and its latitudinal and longitudinal extension हमने रीड किया और वर्ल्ड में जो है उसका एक इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हम उसका लोकेशन कैसे ढूंढ सकते हैं और वो क्या हो सकता है वो मैंने आपको समझाया. ओके और कौन से हेमिस्फीयर में है. ओके तो आप इस चैप्टर को to this chapter you have to read at your home and find out your doubts and during the doubt classes you can ask to me. Okay about the doubt classes, school will inform to you. Thank you.